So when to read the time, you need to read it like 1454. Okay, the time is 1454. Take the time example as it is being now. The time is 2110. Okay, and further, if second is also mentioned, the time is 2110 and half. Okay, we generally ignore the seconds, but if that is an absolute half, then we need to count. We cannot ignore that. Now give me a readability of frequency. Read this, how it can be read as. Be participative guys so that I can understand कि आपको अभी तक सब कुछ समझ में आया. Yes, go ahead. Keep participating. How to read this? 178.500. Victor Tango Lima Kilo. Done. Okay. Okay. We'll move others. Victor Tango. Madhav का कोई call sign नहीं है. Okay. Madhav, if you are ready to answer, then I'll ask some of the questions. Are you able to answer it? Yes, sir. Okay. Then help me to write the ICAO location designator of Nagpur Airport. इसका location designator क्या रहेगा? इसके लिए टावर Nagpur Airport. Other stations can also give the answer. If you are ready, how to answer this? Nagpur Airport का ICAO location designator. VA. PNP. Very good. What to write of Kolkata? कोलकाता का क्या होगा? Answering it, कोलकाता को कैसे लिखेंगे? That's how we can conquer the ecolocation designator thing. Otherwise, फॉर्मूला रटने से नहीं होता है वो. आपको डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे लास्ट. विक्टर एको चार्ली चार्ली. ठीक है. Then somebody will help me to write for the Gaya. Look at the map. Where is Gaya? And find it out. Yes, go ahead. I'm listening. Anyone? Go ahead. Go ahead. Cricket Tango India, Zulu November. You can also participate in this. If you are not a busy in any other job, then try to answer it. Gaya Airport. Say again. Say again. Like what I have to tell you about Gaya Airport? Gaya Airport. ICAO location designator. 4-digit letter code में कैसे लिखेंगे गया एयरपोर्ट को? Are you getting the question? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? I am asking कि the 4-digit location designator, like for Nagpur, that is VANP, that is 4-digit ICAO location designator. ठीक है? For Kolkata, it is VECC, Victor Echo Charlie Charlie. What to write for the Gaya Airport? अगर Gaya Airport, which is here, if we need to write the ICAO location designator of airport Gaya, how to write that? What will be the answer? Go ahead.
विक्टर इको गोल्फ चार्ली. विक्टर एको गोल्फ चार्ली, ठीक है. एंड व्हाट अबाउट पटना? This is simple, VEPT. Okay. If you recall the 4-digit location designator, how it is being written, then you can also see the first digit represents AFSRA, that is Indian AFSRA. You all were that day in class, I guess. Then after you need to find the letter code of FIR, and then last 2-digit letter is the first and third letter of VR code or the letter code of the city. So if I write the echolocation designator of Patna Airport, that how will go? Just have a look. First of all, this is an Indian airport, so it will be Victor, AFSRA Victor. Then it is in Kolkata FIR, so FIR letter code E. Then Patna का VR code क्या है? PPT, Papa Papa Tango. So the last 2-digit for echolocation designator will be PT. VEPT is the echolocation designator of airport Patna. Am I clear so far? Yes. Victor Tango India Zulu November. Am I clear for this? Yes, sir. Okay, then help me to write the letter code of Jamshedpur. Victor Echo Juliet Sierra. Juliet Sierra. Very good. What about Ranchi? Victor Echo Romeo Charlie. Romeo Charlie. Very good. Now we'll have a look for Kanpur. Kanpur Airport. Find out that and help me to write. Try to write for the Kanpur. Yes, anyone? Find the Kanpur and write the name of Kanpur Airport. I'm highlighting it where it is. Now, Victor Alpha Kilo Alpha. why Alpha? First, Victor, because of Indian FSRA. And then what it will be? एक एक करके डिकोड करना है. First, that is an Oh, Indian Delhi. airport. हाँ. हाँ. दिल्ली FIR का क्या लेटर कोड होता है? Alpha. I, India. Sorry. That's why for that only practice is there ना. I can understand कि there are several things जहां आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उसको रिकॉल करना टफ हो जाता है. ठीक है, that's why practice is there. And that's why RT is totally about the practices only. आप जितना बेहतर प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आंसर कर पाओगे. Now, somebody will help me to write the airport code for Varanasi. Find out Varanasi and let me know. Here it is, Varanasi. Victor Echo. आराम से. Victor, okay, because Indian airport. Why Echo? That is in Delhi FIR, I guess, right? See this green color line? Okay. This green color is the division of FIRs, right? So Varanasi is in Delhi FIR. What will be the letter code after that? India. India. Very good. After that? India.
विक्टर Why वाराणसी का Victor? नाम ही नहीं दिख रहा शॉर्टकट में, हाँ, किधर है ये? दिखेगा दिखेगा दिखेगा, वेरी गुड. If you look at Varanasi, ठीक है, and while describing that I have told कि जहां पे भी सिटी Victor. कोड लिखा रहेगा उसके आसपास उसका व्यूआर कोड लिखा रहेगा हमेशा. इफ अच्छा ब्रावो 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 ब्रेवो नवंबर, ठीक है. अच्छा अगर कई ब्रावो बार मैप के पास इनफ स्पेस नहीं मिलता है, रिमेंबर दैट डे आई वाज डिस्क्राइबिंग व्हिच वन. अगर मैप के पास इनफ स्पेस नहीं मिलता है, देन दे विल यूज द पॉइंटर्स. ऐसा करके कोई ना कोई पॉइंटर यूज करेंगे, ठीक है. हम लोग एरो मार्किंग पढ़ते हैं ना, इसको पॉइंटर्स बोला जाता है. सो दे विल यूज पॉइंटर्स टू पॉइंट इट आउट कि ये वाला एयरपोर्ट है वाराणसी, उसके एटीसीज रहे ये सब. So if things are getting complex, they will use some kind of pointers. So what is going to be the account letter code finally? विक्टर इंडिया ब्रावो नवंबर. Bravo November. Very good. Now you all have get the clear understanding of location designator. So you are going to tell me few more and then I'll close this topic further. What is going to be for Bhopal and Jabalpur respectively? Try to answer that. इधर है भोपाल. Anybody? किधर है भोपाल? I think I had zoomed the screen enough to see. मुंबई का ओ है ना FR. नहीं, मुंबई का अल्फा. Just have a look अल्फा on the अच्छा. screen. हाँ, see. तो फिर इसका है मुंबई. विक्टर. अरे Go ahead. Victor. हाँ. विक्टर अल्फा ब्रावो लीमा. You need to remember that भोपाल का है VABP. Bravo Papa. There are some exceptions you need to remember. ठीक है? There are not much. There are not much in numbers. There are few only. You need to recall as it is. भोपाल का होता है VABP. But as per the rule, you went right. That is okay. The first and third letter you had used. There are some exceptions you need to recall. What about Jabalpur? विक्टर अल्फा जूलियट ब्रावो. Juliet Bravo. Very good. So that's how we can practice day by day. There are only 8 charts and we are able to complete 2. तो सारे charts पे हम लोग एक एक करके नजर मारेंगे and we'll able to see कि if we are good to write the account location designator or not. ठीक है? We need to conquer it by the practice only. ठीक है? And the day I have told कि I haven't seen any student जिसको account location designator लिखने में problem हुआ हो. तो प्रॉब्लम कैसे नहीं होगा? बाय द प्रैक्टिस. इफ यू डू प्रैक्टिस वेल यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम. ठीक है. बिफोर गोइंग अहेड आई विल जस्ट हैव अ क्विक रिकैप ऑन द FIR regions. We have 4 FIR regions. ठीक है. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. Delhi represents letter code I. Western Mumbai FIR is being represented by a letter code alpha. Southern Oscar and Eastern E. ठीक है. Including Guwahati, the same thing is written as echo only. ठीक है. So first letter code of any Indian airport will be Victor because of Indian FSRA. Then second, which region it is lying on? If that belongs to Mumbai FIR, the second letter will be Alpha. If that belongs to Eastern FIR, that will be Echo. If that belongs to Southern region, then that will be Oscar. If that is another region, that will be India. Done? Now, we'll move ahead to our next topic and I think please confirm out of these 4 lectures, everything is clear to you, like readability scale, reaching a station, readability check, all aeronautical phonetics, including the reading techniques of number, altitude and time. Is this clear to you? अगर कुछ नंबर रेंडम्स आपके पास पढ़ने के लिए आ जाए, will you be able to read it? Yes, sir. Okay. Then about aerodrome and its part, how you are going to define which is to be called what?
If you are comfortable with this, then I'll have a quick question on that. Center line of taxiway कौन से कलर का होता है? Central and taxiway green color. And is light? Edge light blue color. Okay. What about the center line of runway? How it is being colored? Central line of runway being initially white, then white plus red, and end red. ठीक. Very good. So these are the some questions that I have asked now. Question number 5 में पूछे जाते हैं. ठीक है. और हो सकता है पार्ट सेकेंड में आपसे जो भी WPC के पर्सन बैठे होते हैं, दे में आस्क द सेम क्वेश्चन कि कौन कौन सा लाइट आप एयरपोर्ट पे देखते हो. डन. सो द वेरी पॉपुलर इज रनवे लाइट्स एंड टैक्सीवे लाइट. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू राइट सम ऑफ द कॉल साइन. हेल्प मी टू रीड दैट. भी टेस्टिंग होगा. नोट वोट पलट लो सब अपना अपना. QP7908. How to read this? Akasa A7908. 798. Okay. अभी मैं स्क्रीन पे इसको साथ में रखता हूँ because this is initial practice, so you can have quicker reference also. If something is written as, read it. High Star 8907. Very good. If that is this one. AIX 9908 क्या बोला जाएगा इसको? Air India Express 9908. 9908. That is Air India Express for now. ये सब जो मैंने नोट्स में लिखे थे ना, आई थिंक ये तो मैंने पिछले साल ही लिख दिया था. पिछले साल से अभी तक में एयर एशिया बंद हो गया. एयर इंडिया एक्सप्रेस का कॉल साइन चेंज होके AIX हो चुका है. अलायंस एयर आई थिंक समहाउ दे आर ऑपरेटिंग रीजनल एयर्स नाउ आल्सो. ठीक है. गो फर्स्ट बंद हो गया कंप्लीटली. विस्तारा बंद हो गया. एयर इंडिया बंद हो. एयर इंडिया बंद नहीं हुआ. आई थिंक एयर इंडिया है. सो 2 एयरलाइन इज इन एग्जिस्टेंस. क्या है? एयर इंडिया मर्ज हो गया. एयर इंडिया विस्तारा मर्ज हो गया. एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया मर्ज हो गया ना. हाँ. So they came with the new call sign Air India Express. Air Asia और Express ये दोनों मिलके आए AIX. ठीक है. AIX, that is Air India Express, and Vistara plus Air India, they are now Air India only. ठीक है. So that may come into your question because they are asking for latest revision. AI is already Air India. AIX is Air India Express. That's all. Then after nothing significant. And if you find UK 8907, now how to read this? विस्तारा 8987. And very popular. ये माधव बोलेगा सर. Go ahead. Say again, read you 2. Again, read you 3. I fly 9907. That's all. ठीक है. Okay. So we had a quick recap of whatever we have seen till the time, and I need to go ahead. Now quickly let me know if we are operating our aircraft at 18,000 feet. Can I fly VFR? One 8,000 feet. You can. VFR, I am asking visual flight rule. Above 18,000 or we are flying at 18,000 feet. Again, I am writing if we are operating at 18,000 feet. I want to operate under VFR. Can we? No. No. No, We sir. shall mandatorily have IFR. What is the time limit of VFR operation? 60.
30 minutes. 30 नहीं, 30 minutes. minutes before sunset and 30 minutes after sunrise. Very good. Very good. So this is the time of VFR operations. These are the some quick questions which basically related to pilot background. जो पायलट के स्टूडेंट वहां पे बैठते हैं ये सब उनसे पूछे जाते हैं. बट सच क्वेश्चंस आर सो जनरल इन नेचर कि वो आपसे भी पूछेंगे. एंड इफ वी एनीवेयर सेज कि सर वी आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट वी डोंट नो मच, तब वो रिप्लाई भी करते हैं. ये सब क्वेश्चन तो बेसिक है, तो इसको आप लोग एटलीस्ट याद करो. ठीक है. This you cannot say कि we are not a flying candidate. So some basic questions are already there. Now, who is going to tell me about wake turbulence categories? How many are those? 3. Low, medium, Ah. high. ठीक. And And super how- high also. Super heavy. Yes, go ahead. And how it is being categorized? What is the factor of categorization of wake turbulence? Based on weight, based on Weight, size, based weight. on length, based on the weight. ठीक. The maximum tech. बताओ बताओ, थोड़ा ज्यादा बताना चाह रहे हो. यस यस, गो अहेड. कौन कौन सा है मैक्सिमम टेक ऑफ मेट का कैटेगरीज फर्दर? ट्राई टू स्पीक. क्या है कैटेगराइजेशन? लो का टिल 7000 kg. ठीक है. अप टू 7000 kg wake turbulence will be considered low or light. From 7000 kg to 7000 kg to 1,36,000, that will be medium Mid. or moderate. And then after that heavy, and some of the aircraft that lies on super heavy. Okay. Now, give me some of the example of moderate wake turbulence category. Some of the example aircraft for wake turbulence moderate. Airbus 320. Airbus 320. ठीक है. Airbus 320, Boeing 737, 319, ATR, अपने जनरल एविएशन में बम्बार्डियर एयरक्राफ्ट. ठीक है. Emirates के aircraft. These are the moderate wake turbulence वाले. So now we are going to open one new topic, that is reciprocal of runway. Okay. For that I need to use the pen. Something is reciprocal of runway, and while looking at the aerodrome and its part, okay, while looking at aerodrome and its part, we have seen that a runway can be used from both of the direction. Runway को use आप दोनों डायरेक्शन से कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द विंड्स फ्लो. किस डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रहा है ये उस पर डिपेंड करेगा कि हम अभी रनवे का डायरेक्शन क्या रखने वाले हैं. ठीक है. Now here one more basic question is being arises. ठीक है. अच्छा, whatever the quiz I am asking here and whatever the questions I am doing it here, you can always make a note of it because anything can be asked in part 2 Viva. That's why I am asking such questions so that you can have practice of part 2 and part 1 together. Okay? There will be no separate practice for 1 and 2. We need to carry both of the things together only. Okay? So if somebody will ask, what is the favorable direction of takeoff and landing, against the wind or in the same direction of the wind, which is being carried? कौन सा फेवरेबल रहता है, अच्छा कौन सा रहता है, विंड्स के अगेंस्ट और विंड्स के डायरेक्शन में? This is very basic question, guys. You need to against the wind. We need to always take off and land against the wind so that we can have maximum lift. ठीक है? Because of the reaction of air, and we can have cushion effect while landing. Done? Now, if we are look at runway, okay, something is written as 27 and something is written as 09. Who is going to tell me what it represents? इसको कैसे पढ़ेंगे? 90 degree 270 degree. 270 degree. Very good. So this runway is making
this runway is making 900 degrees from this side, okay, and 270 degrees from this side of the Earth magnetic field. Okay, this is 0 degree and this is 270 degree. Now, for some extent, we need to identify and we need to calculate reciprocal of the runway. Reciprocal hota kya hai basically? Reciprocal means if something is opposite to each other, then that is known as reciprocal. Okay? Or something is known as, in the basic calculation, something is known as inverse. Okay? 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -5. ठीक है, अगर 5 में हम -5 को ऐड करेंगे then that will be 0, like that. So something is known as inverse or something is known as reciprocal. इसका मतलब क्या होता है? Over a circle या फिर over a globe, if we draw a straight line that is going to be 180 degree apart from each other. Okay, 2 points on a straight line is 180 degree apart from each other. If here we are writing 1 degree, then that will become 181. Okay, a semicircle is 180 degree. Okay, base of the semicircle represents 180 degree. So reciprocal means opposite end. If this is a point A, then point B is the reciprocal of point A. Okay, this point B is the reciprocal of point A. So we need to identify the reciprocal. How that is being used, we'll come that later, but first we learn to identify the reciprocal. Suppose we need to identify the reciprocal of two runways. Something is runway 12 and on another end we have runway 24. We have to identify the reciprocal of runway. We need to calculate reciprocal. First convert it into the angle. Runway 12 becomes 120 degree. Runway 24 becomes 240 degree. Done? If this figure is less than 180 degree, then add 180 degree into it. And if this figure is greater than 180 degree, then subtract 180 degree from it. Okay, this will become 300 and this will become 060. Again, we can convert it into runway and this will become runway 30. This will become runway 06. So we can say runway 06 and runway 24 is reciprocal to each other. Runway 30 and runway 12 are reciprocal to each other. अगर एक एंड पे रनवे 24 रहा तो अदर एंड पे रनवे 06 रहेगा. अगर एक एंड पे रनवे 30 रहा तो दूसरे एंड पे रनवे 12 होगा. Am I clear so far? Is it good to understand? Yes, sir. Understood. Yes. Lima kilo. Yes, sir. So you can see this is 180 degree apart each other, right? 180 degree, either addition, either subtraction, but 180 degree apart from each other. Okay. Ved Prakash. No, he is not here today. He was confused someday. He was asking me that day, ki upon adding these two, it should be 360 degree. कि एक पॉइंट का अगर दो एंगल ऐड करेंगे तो 360 डिग्री बनना चाहिए. नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगाना है. सो आई थिंक यू नो ही इज नॉट हेरिमेटिक. सो ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगाना है. ठीक है, बेसिक सिंपल सा रूल है स्ट्रेट लाइन का. ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इफ वी कंसीडर्ड 2 पॉइंट, ठीक है, देन दैट विल मेक 180 डिग्री apart from each other. So the two ends of runway are
180 degree apart from each other. Why 180 degree exact? Because that is a straight line. रनवे कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो देखा नहीं आपने, रनवे हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है. So this is how the calculation is. One more time I am going to explain. If the runway angle is less than 180, add 180 into it. ठीक है, रनवे को सबसे पहले एंगल में कन्वर्ट करेंगे. If that figure is less than 180, तो 180 उसमें ऐड कर देंगे. If the figure is greater than 180, subtract कर देंगे. Whatever the angle will come, later we will convert it into runway number, divide by 10. Runway 06 will be the reciprocal of runway 24, and runway 30 will be the reciprocal of runway 12. ठीक है, that's how become runway 27 is reciprocal of runway 09er. इसीलिए रनवे के दो एंड पे एक जगह अगर 27 लिखा रहता है तो दूसरे साइड 09er लिखा रहेगा. ठीक है, सम ऑफ द रनवे कैलकुलेशंस आई एम पुटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत क्लियर है और बहुत इजी है, एकदम क्लियर, एकदम इजी. एक साइड पे अगर 27 रहेगा तो दूसरे साइड पे 09er रहेगा. ध्यान से देखना, बेसिक कैलकुलेशन है. 2608 2507, एक एक घटते जा रहा है, उधर भी एक एक घटते जाएगा. देख रहे हो? गेटिंग इट? ऊपर ऐड होता जाएगा, इधर भी ऐड होता जाएगा. समझ में आया कैसे रनवे का रेसिप्रोकल रहता है? तो ये कुछ पॉपुलर टेबल्स है, एक एक जोड़ने घटाने का है. अगर आपको एक भी याद रहेगा ना, मेन वाला 27209er, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रनवे 22 से 30 के बीच में खत्म हो जाता है. ठीक है, लगभग सारे रनवे इक्वेटर के हिसाब से बनते हैं. इक्वेटर तो थोड़ा सा ऐड, थोड़ा सा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, बट यही रहेगा ऑलमोस्ट. तो कई बार अगर कैलकुलेट करना पड़े फटाफट, सपोज लो कि कैलकुलेशन भूल गए, टेबल बनाएंगे, घटा के देख लेंगे. 2709 याद रखना है. यहां से अगर 3 सब्सट्रैक्ट हुआ, यहां से भी 3 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, 22 का मैंने आई थिंक गलत लिख दिया इधर. 22 का हो जाएगा 4. ठीक है, इज दिस टॉपिक क्लियर? पक्का सबको समझ में आ गया? हाँ सर. Then I'll give some exercise. Yes, sir. Find the reciprocal of runway 14. ठीक है, and some will find the 14. reciprocal. हाँ, runway 14, this is for Madhav. Runway 34, this is for India Zulu November. Runway 18, this is for Lima Kilo Kilo. 260 सर. ठीक है, 26. okay, next. India Zulu November, have you got the right answer? मैंने बिना बोले कुछ स्क्रीन पे लिख दिया. रनवे 14, 140 प्लस 180. सर कैलकुलेशन हो गया. ठीक है, ठीक है, होता है. 320. So रनवे, हाँ, 180 का क्या है अपोजिट? 180 वाला? नहीं नहीं नहीं, 000, यही तो ट्रिकी था. देखो, अगर बेसिक कैलकुलेशन सीखना है, मैंने क्या बताया था, अगर वैल्यू मोर देन 180 है देन सब्सट्रैक्ट 180, एंड इफ लेस देन 180 देन ऐड 180. एग्जैक्ट 180 आ गया तो 0. हाउ?
ड्रॉ कर लेते हैं ना, दिस इज ग्लोब, ठीक है, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री. Now tell me, 180 is opposite to 0 degree, right? So if at one end we are having runway 18, then that will become runway 00. 90 नहीं होगा. Clear? Lima kilo Clear. kilo. Clear, sir. Okay. Then another question was runway 34, right? Runway 34. Either इसको 00 डिग्री बोलो या फिर 360 बोलो on a circle. एकदम बेसिक मैथ है, इसको हम समझने पे जितना टाइम आपको चाहिए आई एम गोइंग टू स्पेंड इट, बिकॉज बाद में हमको कैलकुलेट करने का मौका नहीं मिलता है. आइदर वी कैन से 0 डिग्री और 360 डिग्री. इफ वी आर सेइंग 340, ड्रॉ करो लाइन, देखो 340 अगर हम यहाँ पे मानते हैं, ठीक है, 270 टू 360 कैसे जाएगा, 290 होगा, 300 होगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते. सो सपोज दिस इज 340, इस एंड पे ये 160 के अराउंड आके कट करेगा, राइट? 180 से छोटा है, 90 से बड़ा. आर यू गेटिंग दिस? अनदर क्वेश्चन वाज रनवे 14. सो रनवे 14, अगर ये रनवे 16 है, ठीक है, जस्ट हैव अ लुक, अगर ये रनवे 16 है तो रनवे 14 इधर रहेगा. ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, इधर जाके कट करेगा 320 डिग्री. क्लियर? So runway 32 is reciprocal of runway 14. Runway 34 is reciprocal of runway 16. 180. कुछ नहीं, एक ग्लोब को ध्यान में रखो ना, 180 डिग्री अपार्ट करो. Am I clear? Then I'll have another calculations also. ठीक है, इसका यूज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आपको बाद में पता चलेगा कि आपके पास कैलकुलेट करने का टाइम ही नहीं है. अगर फटाक से आंसर नहीं आया तो जो क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट में हो सकता है उस पे आप लोग 3 मिनट स्पेंड करोगे. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फॉर द क्वेश्चन नाउ. हु इज गोइंग टू टेल मी द, अच्छा मैं डिवाइड कर देता हूं. फॉर माधव रनवे 48. 48. फॉर लिमा किलो किलो रनवे 25. इंडिया जुलू नवंबर फॉर यू रनवे 13. हाँ, करो करो, बेसिक मैथ्स है, नथिंग. अभी किसी का फनी आंसर आएगा, वेट फॉर दैट. ये 480 डिग्री का कहाँ से बनाएगा? हाँ, तो 480 डिग्री होता ही नहीं है, क्वेश्चन वही गलत हो तो, गया. ठीक है, वही तो. ओके. मेरा 310 है. हाँ तो 310 हो सकता है मैम. योर क्वेश्चन इज रनवे 13, रेसिप्रोकल ऑफ रनवे 13. 113 1800 311 21, मतलब 21 नो नो, रॉन्ग आंसर. है. नहीं 310 31 रनवे में रनवे 31. रनवे. यस. वेरी गुड. व्हाट अबाउट रेसिप्रोकल ऑफ रनवे 25, लिमा किलो किलो? 70. 70 रनवे कैसे होगा? 07. Sorry. हाँ, if that is 70 degree, we are writing it into 3 digit, कट करके बन जाएगा रनवे 07. Am I clear so far? पक्का, अगर सब कुछ सेट है तभी बताओ. Nothing to worry. हाँ सर. All sorted? सर एक बार Can we? बताना एक बार फिर से. अच्छा, ठीक. We are saying कि suppose we have asked to calculate the reciprocal of runway. तो क्वेश्चन में है, ठीक है, इसका सबसे बड़ी चीज पता है क्या, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, एग्जाम में ये आएगा ही नहीं. फिर आप बोलोगे कि फिर बता क्यों रहे हो. इसका एग्जाम में इतना वाइटल यूज है कि आपको 1 सेकेंड नहीं लगेगा आंसर को क्रॉस करने में.
अगर आपको ये कैलकुलेशन आता है, बट अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं आता है तो उसी 1 मिनट के आंसर को आप 4 मिनट तक ले जाओगे, फिर भी गलत आंसर करोगे। ठीक है, वाइटल रोल है। कैसे? जस्ट हैव अ लुक। हमको दिया गया टू कैलकुलेट द रेसिप्रोकल ऑफ रनवे 12 and to calculate the reciprocal of runway 24. First we will convert it into angle. तो रनवे 12 मतलब 120 डिग्री, ठीक है। रनवे 24 मीन्स 240 डिग्री। माइनस बेसिक कैलकुलेशन क्या कहता है कि टू एंगल्स आर 180 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। So if this value is greater than 180, then we will subtract 180 from it. And 06 if this value is greater than 180, then 300. then we will add into 300. it। ठीक है, ये तो हमको मिल गया एंगल। ठीक है, अब एंगल से रनवे में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला है? डिवाइडेड बाय 10। सो दिस विल बिकम रनवे 30 and this will become runway 06। so runway रेसिप्रोकल का साइन देखो कैसा होता है। रनवे 12 is reciprocal to runway 30 and runway 24 is reciprocal to runway 06। am I clear so far? यस Yes, sir. इसी को मैंने टेबुलर फॉर्मेट पे समझाया था। क्या? सपोज हमारे पास इतना हमको पता है कि 27 के अपोजिट में 09 होता है, तो 26 के अपोजिट में 08, 25 के अपोजिट में 07। 07, ठीक है, 06, ऊपर बढ़ते जाते हैं। 10, 29 के अपोजिट में 11, 11 12, 12 13. इतने में मामला निपट जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा कहीं भी रनवे बनते ही नहीं है, ऑलमोस्ट इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मिलेगा तो दैट इज अ केस, आई एम नॉट सेइंग कि बना ही नहीं सकते, बट क्यों ऐसा रखते हैं कि हम लोग जब रनवे बनाने चलते हैं तो देयर इज अ मेथड इन एरोड्रोम स्टैंडर्ड एंड लाइसेंसिंग। व्हेन यू आर गोइंग टू मेक एन एयरपोर्ट, आपको तो एयरपोर्ट बनाने का मौका नहीं मिला होगा, बट आई गॉट अ चांस टू मेक एन हेलीपैड। ठीक है, Oh, तो wow. जब तो देयर वी हैव लर्नड एरोड्रोम स्टैंडर्ड एंड लाइसेंसिंग। ठीक है, इक्वेटर के अलाउंग। ठीक है, क्योंकि जितने भी कंट्रीज है, जब यहाँ पे एयर का फ्लो होता है, ऊपर पूरा नॉर्थ पोलर, नीचे पूरा पोलर साउथ, दीज आर द कोल्ड एरियाज। तो गर्म हवा ऐसे ठंडा, सॉरी एयर का फ्लो कैसे होता है? फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। तो जो एयर फ्लो ऐसा करके होता है ना, तो इसी को बैलेंस करने के लिए, तो जो भी हमारा इक्वेटर पे एयर का फ्लो हमेशा थोड़ा सा ऐसा चलता है, ना ही परफेक्टली नॉर्थ एयर फ्लो करता है, ना ही परफेक्टली साउथ। तो इसी को बैलेंस करने के लिए हम ऐसा रनवे बनाते हैं। अगर हमारे हवा का डायरेक्शन हमारे एयरक्राफ्ट के लैंडिंग से अपोजिट हो गया तो इससे हमको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, लिफ्ट मिलेगा ज्यादा। ठीक है, अगर हमने पहले ही रनवे को ऐसे बना दिया, सॉरी अगर मैंने रनवे को पहले ही ऐसे बना दिया तो ये तो गस्ट करेगा, एयरक्राफ्ट लैंड करने जाएगा, पता चला बाएं घिसका दिया इसको। समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू विजुअलाइज इट? या अगर अगर हमारा रनवे ऐसा है, देन दिस विल हेल्प अस फॉर लैंडिंग एंड टेक ऑफ। अगर हमारा रनवे इसको क्रॉस करेगा तो गस्टिंग फील होगा, एयरक्राफ्ट ऐसे लैंड करने जा रहा है, इधर से हवा आ गई तो ये तो इसको पुल पुश करके उधर फेंक देगा। ठीक है, दैट्स व्हाई मेनी ऑफ द एयरपोर्ट्स हैविंग देयर क्या कहते हैं रनवे इक्वेटर वाइज। डन। सो देयर आर फ्यू कैलकुलेशंस यू नीड टू कैरी नाउ। अभी आप बोलोगे कि सर आप इतना डरा रहे थे, अब बताओ कि हाउ इज दैट इंपॉर्टेंट टू अस। नाउ देयर विल बी सिचुएशंस इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, कि you have lined up for departure, you have lined up for departure due to winds direction। आपके डिपार्चर का डायरेक्शन आपने ये डिसाइड किया, आपको पता चला कि हवा भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, so that is not a favorable to us। that नहीं। time we need the opposite end of runway। अब जब उस क्वेश्चन में हम अपोजिट एंड ऑफ रनवे का डिमांड करेंगे,
that time we cannot simply say कि request opposite end of runway for the departure. That time we need to calculate and give the exact figure. ठीक है? If this is runway 27, then we need to say request runway 09er for departure, like that. If this is runway 24, we need to say request क्या बोलेंगे runway 06 for departure. Am I clear? Clear. Are you getting हाँ it? सर. That time if you say कि request opposite end of runway, examiner बोलेगा okay, कोई बात, एक नंबर कटा, ठीक है, because they just want to see B into perfect. जो out of 20 के एग्जाम होता है ना, एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ मार्किंग है 15, अगर आप बहुत अच्छा बोलोगे तो, ठीक है, 15 से 16 में ही आपका नंबर खत्म हो जाएगा, इससे ज्यादा तो कोई नहीं पाता है, ठीक है। और आप अगर जैसे जैसे मिस्टेक करते जाओगे, एक एक नंबर इसी में कम होता जाएगा, या कुछ ऐसा पैरामीटर जो कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोलना चाहिए था, बट आप एज ए स्टूडेंट उसको कैजुअली इग्नोर कर दिए, तो इसी में एक एक नंबर कम होता जाएगा, तो ये घटते घटते आपका 11-12 पे आ जाएगा। यू विल नॉट इवन रियलाइज कि कहाँ मिस्टेक हुई। छोटी छोटी चीजों को वो लोग समझते हैं कि ही इज बाईपासिंग द मेथड, सो वी शुड नॉट डू दैट। इज दिस टॉपिक क्लियर? रेसिप्रोकल ऑफ रनवे पक्का? शैल आई गो अहेड देन? Go ahead. Yes. Now, the next topic as per our lecture plan we are going to attend is aeronautical phrases, ठीक है। फ्रेज का मतलब क्या होता है? हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मीन्स फॉर द मेनी ऑफ द वर्ड्स वी कैन से ओनली वन थिंग, लाइक कि इफ कौन सा एग्जांपल लाते हो, ठीक है, लाइक वी कैन से कि इफ समवन इज, जैसे चोर बोलते हैं ना, एक हिंदी में वर्ड होता है चोर या थीफ, ठीक है, तो उसके लिए जो एक स्टेटमेंट होता है दैट इज रात्रि में विचरण करने वाला, मीन्स रात में जो सोता नहीं है तो उसको बोलते हैं निशाचर, जो रात में नहीं सोता है उसको बोलते हैं निशाचर, या फिर जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको बोलते हैं वाचाल, मीन्स ही इज स्पीकिंग टू मच, so that is vachal. So if we are considering it as a phrase, so instead of writing many things we can summarize it up into a word. क्यों? क्योंकि हमने कल आपको बताया था कि आप अपने एयरक्राफ्ट का पुश टू टॉक स्विच 1 मिनट से ज्यादा प्रेस करके नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड, बिकॉज ऑफ हेवी अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग करंट एंड वोल्टेज, that is not recommended. So within 1 minute we need to finish our conversation. For that we need to use aeronautical phrases. ठीक है? The very first phrase is acknowledge. ठीक है? Acknowledge का मतलब होता है let me know if you have received and understood. मुझे बताओ कि मैंने जो मैसेज आपको दिया आपके पास वो रिसीव हुआ, प्लस आप उसको समझ भी गए। Acknowledge it. तो आप बोलोगे यस आई हैड अंडरस्टूड, राइट। सो एक्नॉलेज इज ए इंटरोगेटिव सेंटेंस कि आप किसी से पूछ रहे हो, क्वेश्चन मार्क वाला। लेट मी नो, मुझे बताओ कि मेरा मैसेज आपको रिसीव हुआ प्लस आप उसको समझ भी गए। एक्नॉलेज इट, ठीक है। सपोज देयर आर मेनी पैरामीटर्स एटीसी इज गिविंग टू यू, उसमें रनवे विजुअल रेंज बताया, उसने विंड्स का डायरेक्शन बताया, विंड्स का स्पीड बताया, उसी बीच में उसने कहा एक्नॉलेज आरवीआर, मींस रनवे विजुअल रेंज का डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले वो बताओ कि विजिबिलिटी वाला मैसेज आपके पास सही से पहुंचा, एज वेल एज यू हैव अंडरस्टूड दिस। एक्नॉलेज रनवे विजुअल रेंज मींस लेट मी नो कि इफ वी हैव रिसीव्ड और नॉट, ठीक है। सपोज आपसे कोई मिस्टेक हो गया तो एचआर ने आपका काउंसलिंग किया, दैट टाइम ही विल से एक्नॉलेज, ठीक है, एक्नॉलेज इट कि यू हैड डन अ मिस्टेक, तब आप बोलते हो कि यस आई डिड अ मिस्टेक, लाइक दैट, ठीक है।
So ये क्या the इको meaning, हो रहा है? I hear you I- too. read you to, not here. ठीक है, you can say read you to. Read you too. That. Now something is known as acknowledged, as I told. ठीक है, means let me know कि if you have received and understood the message. उसके बाद अगर आप किसी से कुछ पूछोगे तो आइदर वो यस बोलेगा या नो बोलेगा। तो यस के बदले हम लोग बोलते हैं अफर्म इन एविएशन, यस के बदले हम लोग बोलते हैं अफर्म, एंड नो के बदले बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव बोलने का भी थोड़ा सा एक्सेंट पे ध्यान देना है। लाइक एज पर अवर नॉर्मल यूपी एंड बिहार पीपल दे कैन से निगेटिव, सो इसको निगेटिव नहीं बोलना है, नेगेटिव। क्या, ई को ए जैसा रखना है, नेगेटिव। ठीक है, सो अगर हमको नो बोलना पड़े दैट मीन्स नेगेटिव, यस अफर्म। क्लियर? Suppose ATC asked कि confirm if your aircraft type is Airbus 320, then you can say affirm, मेरा aircraft Airbus 320 ही है, like that. Then something is approved. ठीक है, now just be little cautious here. Something is approved and something is cleared. Approved का मतलब होता है the permission for proposed action granted. आपने बोला इंजन ग्राउंड रन करना है, बोलेगा approved, इंजन ग्राउंड रन अप्रूव। ठीक है, बट एट द सेम टाइम आपने बोला कि वी नीड टू टैक्सी टू द रनवे, तो वो बोलेगा क्लियर्ड फॉर टैक्सी, फॉलो द टैक्सी वे अल्फा ब्रेवो एंड चार्ली। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। आपने ग्राउंड रन का परमिशन मांगा, उसने ब्लाइंड अप्रूवल दिया कि ठीक है जाओ करो। बट जब आपने टैक्सी का परमिशन मांगा, टैक्सी का क्लियरेंस मांगा, वहां पे उसने कहा कि टैक्सी तो करोगे लेकिन यू विल फॉलो द पाथवे टैक्सी वे अल्फा ब्रेवो एंड चार्ली if approval is granted under certain conditions specified, then such approvals are known as clearance. ठीक है, are you getting it? The permission for proposed action, if that is granted, then that is an approval. If permission for proposed action granted, but under certain specified condition, then that is a clearance. क्लियरेंस और अप्रूवल के बीच का डिफरेंस पता चला? Yes, no, anything? Affirm, negative? Are you able Yes, to sir. find it? Affirm. Done. Now there are Affirm, two, sir. break and break. Hold it for now. हम लोग इसको बताएंगे बाद में, अभी के लिए ब्रेक इंपॉर्टेंट नहीं है। समथिंग इज कैंसिल। ठीक है, आपको सपोज परमिशन मिल गया था, ठीक है, कि यू आर रेडी फॉर डिपार्चर, गो टू रनवे 27 एंड देन आस्क फॉर क्लियरेंस, लाइक दैट। तो आपको बोल दिया गया था कि क्लियर फॉर डिपार्चर वाया रनवे 27। Suppose suddenly there is a bad weather and ATC need to cancel it, तो बोलेगा डिपार्चर कैंसिल। ठीक है, या फिर टेक ऑफ परमिशन कैंसिल्ड। कैंसिल मीन्स annul the previous transmitted clearance, annul, nullified, make it null। ठीक है, annul the previously transmitted clearance मतलब आपको जो पहले परमिशन दिया गया था उसको मना कर रहा है, नलीफाई कर रहा है कि नो डोंट डू दैट। आपको छुट्टी ग्रांट कर दी गई थी, 12 से 15 तारीख तक आपको लीव ग्रांट कर दिया गया है, फिर मैनेजर को किसी ने बोला कि देयर इज टू मच ऑफ वर्कलोड, कैंसिल द लीव्स। ठीक है, सो कैंसिल द परमिशन, वट एवर यू हैव ग्रांटेड दैट इज बीइंग कैंसिल्ड। समथिंग इज नोन एज चेक। ठीक है, to check, if something is being checked, it means we are examining either any system, either on any procedure.
सपोज आपको किसी ने बोल दिया कि आपके मोबाइल में जो एचआर का एप्लीकेशन है, अगर वहां से लीव ड्रॉप करोगे तो ऑटोमेटिक आपका लीव ग्रांट हो जाएगा। तो वो क्या बताया गया आपको कि दिस इज ए प्रोसीजर। तो आप एक बार ट्राई कर लोगे कि मोबाइल से लीव ड्रॉप करने से क्या हमारे मैनेजर को पता चल जाएगा कि आई एम आस्किंग फॉर लीव, मींस यू आर एग्जामिनिंग द प्रोसीजर, if this procedure is really effective or not. Another thing, you have completed maintenance on VHF communication system. You want to check if that system is working perfectly or not. Then you will do VHF communication system check. Okay? So check can be understood into both way. If you are examining a system or if you are examining a procedure, दोनों को हम लोग बोलते हैं चेक। ठीक है, 32 hours check, whatever the examination, whatever the inspection is going to be performed on 32 hours, that will be known as 32 hours check. Clear? Cleared मैंने बता दिया था ऊपर। Now something is known as confirm. ठीक है, confirm is an interrogative sentence, क्वेश्चन पूछने वाला, इंटरोगेशन करने वाला। ठीक है, if I say confirm your call sign is लिमा किलो किलो, मीन्स मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्लीज बताइए कि आपका कॉल साइन लिमा किलो किलो ही है या कोई दूसरा है। ठीक है, confirm मीन्स आई रिक्वेस्ट अ वेरिफिकेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, किस चीज के लिए? वेरिफिकेशन पर्पस से। कुछ मुझे पता है बट आई एम डाउटफुल। कंफर्म मीन्स आई रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन फॉर क्लियरेंस और एनी इंस्ट्रक्शन और एनी एक्शन और एनी इंफॉर्मेशन। किसी भी चीज पे अगर डाउट हो तो आप उसका कंफर्मेशन मांग लो, तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा? कंफर्म। सपोज आपने एक फ्लाइट प्लान ग्रांट किया, डिलीवर किया टू एटीसी। ठीक है, कि 8:10 पे आपका डिपार्चर है। नेक्स्ट किसी ने रिक्वेस्ट किया कि 8:12 पे आफ्टर 2 मिनट्स प्लीज ग्रांट मी डिपार्चर एज वेल। अब एटीसी को डाउट हुआ कि इफ जो एयरक्राफ्ट पहले डिपार्ट करेगा, अगर इसका एयर स्पीड 250 नॉट्स के प्लस नहीं रहा तो पीछे वाले को थोड़ा डिले करके रिलीज करवाऊंगा, नहीं तो कोलिजन हो जाएगा। So they may ask you for the air speed. कि विक्टर टैंगो लिमा किलो किलो, मुंबई टू पुणे, कंफर्म योर एयर स्पीड। आप अपना एयर स्पीड कंफर्म करो कि क्या आप 250 नॉट से ही क्रूज करोगे या कुछ कम होने वाला है। ठीक है, अकॉर्डिंगली दे विल मेक प्लान फॉर अनदर एयरक्राफ्ट। ठीक है, सो इफ यू आर डाउटफुल ऑन एनीथिंग यू कैन आस्क बाय सेइंग कंफर्म। ठीक है, विक्टर टैंगो लिमा किलो किलो, confirm if this topic is clear to you. Clear, sir. Cleared. You can reply affirm. 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 ठीक है कि हाँ ठीक है। हम लोग करेंगे ये सारे फ्रेजेस का, हम लोग डे टू डे एक्टिविटी में यूज करेंगे, क्लियर हो जाएगा उस टाइम, डोंट वरी। Then something is known as contact. सपोज आप लीव एप्लीकेशन लेके गए, तो जो आपका शिफ्ट इंचार्ज है आप उसको बोले कि सर मुझे छुट्टी चाहिए 2 दिन की। He will say कि contact base manager. Means he is asking you to establish communication with base manager. ठीक है, he himself cannot make a decision, so he further refer you. ठीक है, so if someone is saying contact means establish communication with, suppose you are making a call to Delhi ground, but that part is not comes under the jurisdiction of Delhi ground, तो वो बोलेगा कॉन्टैक्ट दिल्ली टावर, ये मेरे बस की बात नहीं है, कॉन्टैक्ट दिल्ली टावर। ठीक है, सो इफ समथिंग इज रिटन एज कॉन्टैक्ट मींस एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन विथ, कॉन्टैक्ट के बाद जो बोला जाएगा उसके साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करो। ठीक है, समथिंग इज नोन एज करेक्ट। ठीक है,
करेक्ट मीन्स ट्रू और एक्यूरेट। नाउ अगर आपसे किसी टाइप का पैरामीटर शेयर किया जा रहा है, ठीक है, और आपसे किसी पैरामीटर का रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो उस टाइम पे आप इन जनरल आंसर करने के बदले थोड़ा परफेक्ट आंसर करना चाहोगे। सपोज यू आर फ्लाइंग एट ए अल्टीट्यूड ऑफ 35,000 फीट। एटीसी पूछा विक्टर टैंगो लीमा किलो किलो कंफर्म योर अल्टीट्यूड इज 35,000 फीट। इट मीन्स यहां पे एक पैरामीटर है, ठीक है। सो यू कैन रिप्लाई इन बोथ वेज, आइदर यू कैन से अफर्म, आइदर यू कैन से करेक्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में एक पैरामीटर आपसे पूछा गया था, तो व्हेन देयर इज अ पैरामीटर, व्हेन देयर इज एनी रीडिंग, ट्राई टू आंसर इट इन करेक्ट, ठीक है, कि करेक्ट आई एम एट 35,000 ओनली, ठीक है। बट अगर नॉर्मल कम्युनिकेशन रहेगा, confirm your call sign, confirm your flight plan to मुंबई, तो उस टाइम पे यस अफर्म। समझ में आया दोनों के बीच का डिफरेंस? अगर कोई वैल्यू है, कोई पैरामीटर आपके रीडेबिलिटी में आ रहा है, देन दैट टाइम यू विल यूज करेक्ट। एंड इफ दैट इज अ कैजुअल टॉक, नॉट कैजुअल, if that is a normal conversation, that time you can simply say affirm, yes, okay. Now very important, correction, ठीक है, करेक्शन। सपोज आपसे बोलते बोलते कुछ मिस्टेक हो गया, दैट टाइम यू वांट टू करेक्ट योरसेल्फ, ठीक है, दैट टाइम यू विल यूज द फ्रेज करेक्शन। करेक्शन का मतलब होता है एन एरर हैज बीन मेड इन दिस ट्रांसमिशन एंड द करेक्ट वर्जन इज दिस। सपोज आप फ्लाइट प्लान दे रहे थे, उस टाइम पे आपने बोला एयर स्पीड 300 नॉट्स। Suddenly you realize कि my airspeed is 200 knots. So you will say correction 200 knots. ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, सपोज आपने ये पूरा ट्रांसमिशन दिया, तो जहां पे आपने मेंशन किया वर्ड करेक्शन, तो करेक्शन बोलने के बाद आप जितने पोर्शन ऑफ द मैसेज को दोबारा से बोलोगे, उतने पोर्शन ऑफ मैसेज को प्रीवियसली कैंसिल कर दिया जाएगा। सपोज आपने बोला एयर स्पीड 300, करेक्शन 200, तो करेक्शन बोलने के बाद आपने क्या रिपीट किया, ये वाला न्यूमेरिक वैल्यू, तो इसको कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। करेक्शन बोलने के बाद सिर्फ और सिर्फ लास्ट वर्ड, ठीक है, कैंसिल होता है, ठीक है। सपोज मुंबई सॉरी दिल्ली ग्राउंड ने आपको कहा कॉन्टैक्ट दिल्ली अप्रोच, करेक्शन दिल्ली टावर, ठीक है, ध्यान से देखो। दिल्ली ग्राउंड ने आपको कहा कॉन्टैक्ट दिल्ली अप्रोच, करेक्शन दिल्ली टावर। तो करेक्शन करने के बाद उसने क्या बोला, दिल्ली टावर, मींस दिल्ली अप्रोच वाला वर्ड कैंसिल माना जाएगा। करेक्शन बोलने के बाद आप जितना पोर्शन रिपीट करते हो प्रीवियस आंसर्स में से, उतने पोर्शन को कैंसिल कर दिया जाता है। अंडरस्टूड? सो व्हाइल ट्रांसमिटिंग एनी आंसर, अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो गया, ठीक है, और आप चाहते हो कि थोड़ा सा बस इरेजर चल जाए, ठीक है, इरेजर वहां पे चला जाए कि सिर्फ इतने पोर्शन ऑफ मैसेज को कैंसिल करना है, तो आप बोलोगे करेक्शन। मींस हमारे बोलने में एक एरर हो गया, करेक्शन के बाद आप जो बोलोगे उसको सही माना जाए, ठीक है, प्रीवियस में मिस्टेक था। क्लियर? सो दैट इज करेक्शन। समथिंग इज डिसरिगार्ड, when you are giving a complete call to a wrong ATC or to a wrong person, wrong number डायल हो गया, तब आप उस टाइम बोलोगे डिसरिगार्ड, मींस इग्नोर द कंप्लीट ट्रांसमिशन। करेक्शन के बाद आपका एक थोड़ा पोर्शन इग्नोर किया जाएगा, लेकिन डिसरिगार्ड में पूरा का पूरा मैसेज कैंसिल माना जाएगा। बोलते बोलते आपसे एग्जामिनेशन में मिस्टेक हो गया, किसी टाइप का आंसर अलग टाइप से देने लग गए, बोल दो डिसरिगार्ड, आई वांट टू आंसर अगेन। इज दिस क्लियर? करेक्शन एंड डिसरिगार्ड क्लियर टू यू? Clear, sir. Now, good. Now
we'll move to the next phrase, that is, how do you read? As I told, we are saying it daily. Never say how do you read me. इसको बोलने की प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा है फील्ड में, ठीक है? People are usually habitual to say how do you read me. No, don't say read me. Simply say how do you read. It means what is the readability of my transmission. Now, next one is I say again. You need to pay little attention here also. Something is I say again and something is say again. Okay? If you want to repeat anything for clarity, suppose पुलिस वाले ने रोड पे ट्रैफिक रूल फॉलो करवा रहे हैं या फिर कुछ भी रूल इंप्लीमेंट करना है या फिर कहीं पे मेला लगा हुआ है, दैट टाइम पुलिस पर्सन वांट्स कि वहां पे भीड़ नहीं लगे, सो दे कैन से कि डोंट क्रॉस द बैरियर। आई रिपीट, डोंट क्रॉस द बैरियर। ठीक है, क्या बोला उसने? डोंट क्रॉस द बैरियर। व्हाट इज द मैसेज? कि बैरियर को क्रॉस मत करिए। अगेन ही टोल्ड, आई रिपीट, डोंट क्रॉस द बैरियर, मीन्स मैं फिर से बोल रहा हूं बैरियर को क्रॉस मत करो। ठीक है, so if we are saying I say again means we are repeating our message for further clarity or emphasis, means हम जोर देना चाहते हैं किसी चीज पे कि बैरियर क्रॉस मत करिए। आई रिपीट, बैरियर क्रॉस मत करिए, नहीं तो मैं लाठी चलाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, so such messages are police persons are giving to normal public, so that time they use I repeat. In aviation we are saying I say again, मैं दोबारा बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे बात पे जोर दिया जाए और फर्दर क्लैरिटी के लिए मैं इसको एक बार फिर से बता रहा हूं। समथिंग इज से अगेन। से अगेन इज एन इंटरोगेशन। आपको कुछ समझ में नहीं आया, देन यू कैन आस्क सर से अगेन प्लीज, मीन्स रिपीट करो। आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, किसी से रिपीट करने के लिए बोल रहे हो। रिपीट आइदर ऑल और फॉलोइंग पार्ट ऑफ द मैसेज। यू कैन से कि सर से अगेन आफ्टर आफ्टर हाउ डू यू रीड। जब जिस टाइम आपने हाउ डू यू रीड वाले फ्रेज को समझाया उसके बाद थोड़ा बताइए, उसके बाद क्लियर नहीं है। So if something is written as say again means you are questioning someone कि say again, मुझे बताइए, दोबारा से बताइए। And if you are saying I say again means you are saying it again. Is this topic clear? Say again and I say again. Yes, sir. ठीक है, so if you are say again mean you are asking second person to say it again, and if you say I say again means you are saying it again, आप फिर से बोल रहे हो। Then something is maintain। ठीक है, मेंटेन का थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख लेना सब लोग, MNTN स्मॉल में। ठीक है, मेंटेन। मेंटेन मीन्स होता है कंटिन्यू अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस ग्रांटेड और कंटिन्यू अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस स्पेसिफाइड। आपको जो परमिशन मिला है उसको फॉलो करिए, उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यू करिए, मीन्स मेंटेन करिए। सपोज यू हैव आस्क्ड फॉर अ altitude of 35,000 feet for the cruising, तो बोलेगा मेंटेन 35,000 फीट, मीन्स 35,000 फीट पे ही फ्लाई करिए, मेंटेन करिए उसको। समथिंग इज मॉनिटर। मॉनिटर का भी शॉर्ट फॉर्म लिखना सब लोग, MNTR। मॉनिटर, मॉनिटर मीन्स लिसन आउट ऑन, सुनिए, मॉनिटर करिए उसको। ठीक है, किसको? किसी फ्रीक्वेंसी को। सपोज कोई इंफॉर्मेशन न्यूज चैनल पे कभी कभी न्यूज पब्लिश होता है तो पीपल आर सेइंग कि आज तक लगा के देखो कुछ अच्छा न्यूज आ रहा है, लाइक दैट। इन रेडियो कम्युनिकेशन वी आर सेइंग मॉनिटर सम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मॉनिटर 123.8 कि 123.8 पे जिस भी टाइप का न्यूज सर्कुलेट हो रहा है प्लीज उसको मॉनिटर करिए, आप उसको फॉलो करिए। Then something is negative. Now this is very important for the examination point of view. नेगेटिव का कोई एक मीनिंग नहीं होता है, नेगेटिव का 4 मीनिंग है। देयर आर 4 मीनिंग फॉर अ सिंगल फ्रेज नेगेटिव।
नेगेटिव रिप्रेजेंट्स नो, ठीक है। अगर आपको नो बोलना है तो आप बोलो नेगेटिव। सपोज आपने ग्राउंड रन का परमिशन मांगा, एटीसी बोला नेगेटिव, मींस ग्राउंड रन अप्रूव्ड नहीं हुआ है। सपोज आपके एयरक्राफ्ट का फ्लाइंग अल्टीट्यूड है 35,000 फीट, एटीसी ने बोला कंफर्म योर अल्टीट्यूड इज 34,000 फीट, ये गलत है, तो आप बोलोगे नेगेटिव, माय करंट अल्टीट्यूड इज 35,000 फीट, मींस दैट इज नॉट करेक्ट, आपने जो बोला दैट इज नॉट करेक्ट। फिर आप एटीसी ने बोला कि टेक ऑफ फ्रॉम बैंगलोर एंड climb at 26,000 feet in 01 minute, 1 मिनट के अंदर अंदर आप क्या 26,000 फीट पे जा सकते हो, ताकि मैं दूसरे एयरक्राफ्ट को पीछे से क्लियरेंस दूंगा। बट योर एयरक्राफ्ट इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, सो यू कैन से नेगेटिव, मेरा एयरक्राफ्ट इतना नेग, ऐसा भी नहीं बोलना है कि दैट विल लुक और ऑकवर्ड, तो भी नंबर कटेगा, ठीक है। नेगेटिव, ठीक है, ट्राई टू लिसन एंड स्पीक विद मी, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव। सो दिस अ सिंगल फ्रेज नेगेटिव constitute 4 मीनिंग, नो, परमिशन नॉट ग्रांटेड, दैट इज नॉट करेक्ट, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, दैट इज नॉट करेक्ट एंड नॉट कैपेबल। So in all 4 scenarios, you can write the word negative. Now, अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्वेश्चन नंबर 5 में कई बार पूछ देता है, सीधे लिखा रहेगा नेगेटिव। अब इसके 4 मीनिंग है, तो आपको लिखना पड़ेगा। नेगेटिव मीन्स नो, कोमा, परमिशन नॉट ग्रांटेड, कोमा, दैट इज नॉट करेक्ट, कोमा, नॉट कैपेबल। ये चारों चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कई बार पूछ देता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चारों के 4 मीनिंग्स इसके याद करने होंगे। रीड बैक, एज आई टोल्ड आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे, रीड बैक मीन्स रिपीट, ठीक है। रिपीट आइदर ऑल और स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द मैसेज, या तो पूरा रिपीट करिए या कुछ सर्टेन पोर्शन हमको रिपीट करिए, लेकिन क्या रिपीट करोगे? एग्जैक्टली एज रिसीव्ड, जैसा आपने सुना वैसा ही आप मुझे रिटर्न करो, ताकि मैं ये इंश्योर कर सकूं कि आपके पास सही मैसेज डिलीवर हुआ है। सो इफ देयर इज एनी parameter, if there is any approval, if there is any clearance is being granted, you need to give a read back of that, ठीक है। something is recleared, recleared means आपका परमिशन कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, थोड़ा सा चेंज है। A change has been made to your last clearance and the new clearance supersedes the previous one. सपोज आपको पहले बोला गया था टैक्सी वाया टैक्सी वे अल्फा, नाउ उसको पता चला कि टैक्सी वे अल्फा पे कोई प्रॉब्लम है, तो बोलेगा विक्टर टैंगो लीमा किलो किलो रिक्लियर्ड वाया टैक्सी वे ब्रेवो, मींस अब टैक्सी वे अल्फा के थ्रू मत जाओ। आपका मैं टैक्सी परमिशन कैंसिल नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपका रास्ता चेंज कर रहा हूं कि अब ब्रेवो के थ्रू जाओ, तो बोलेगा रिक्लियर्ड वाया टैक्सी वे ब्रेवो, ठीक है। देन समथिंग इज रिपोर्ट, रिपोर्ट मीन्स पास मी द फॉलोइंग मैसेज, रिपोर्ट योर अल्टीट्यूड मीन्स पास मी योर अल्टीट्यूड डेटा, ठीक है। समथिंग इज रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मीन्स आई शुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहता हूं, और आई विश टू ऑब्टेन, मुझे ये करना है, क्या? रिक्वेस्ट इंजन ग्राउंड रन, आई नीड टू परफॉर्म ग्राउंड रन ऑफ इंजन, ठीक है। रिक्वेस्ट योर कॉल साइन, आई शुड लाइक टू नो कि आपका कॉल साइन क्या है। डन। समथिंग इज नोन एज रॉजर, अब रॉजर का यूज हम लोग करते हैं डे टू डे लाइफ में, जहां पे भी हम लोग ओके बोलते हैं, ठीक है, तो ओके का रिप्लेसमेंट है रॉजर, ठीक है। ओके के बदले हम लोग बोलेंगे रॉजर।
Roger means I have received all your transmission. ठीक है, आप जो बोल रहे हो ठीक है, ओके। हम लोग बोलते हैं ना कि ओके कल मिलते हैं, तो बोलता है ओके कल मिलते हैं। दिस मीन्स रॉजर कि ठीक है, आपने जो प्लान बनाया विल कॉपी दैट। ठीक है, नाउ समथिंग इज स्टैंड बाय। अगर एटीसी बिजी है या फिर कोई भी दूसरा स्टेशन जिससे आप कॉल कर रहे हो, इफ दैट स्टेशन इज engaged somewhere, ठीक है, then that time they will say कि wait I'll call you back। सपोज आपको जब कोई कॉल करता है तो आप बिजी रहते हो उस टाइम पे, या फिर आप किसी मीटिंग में हो, आपको कॉल आ गया, तो मोबाइल पे एक मैसेज रहता है ना, क्या कहते हैं, क्विक रिप्लाई वाला, कि आई विल कॉल यू लेटर। ठीक है, सिंपली इन एविएशन इफ समवन इज engaged in some other work, that time he will say stand by। स्टैंड बाय मीन्स वेट, आप इंतजार करिए, जब भी मैं फ्री हूंगा मैं कॉल करूंगा। बट एग्जामिनेशन में एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपको एग्जामिनर ने बोला स्टैंड बाय, तो ज्यादा टाइम तक इंतजार नहीं करना है कि वो कॉल बैक करेगा। 5 से 10 सेकेंड का इंतजार करना है, उसके बाद फिर से कॉल कर देना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में टाइम लिमिटेड है। एग्जामिनर हो सकता है आपका टेस्ट ले रहा हो कि वेदर यू आर गोइंग टू रेज द स्टेशन अगेन और नॉट। सो अगर 5 से 10 सेकेंड के अंदर रिप्लाई नहीं आया तो आप फिर से कॉल करिए, नहीं तो आपका टाइम जाएगा, एग्जामिनर का कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, देन समथिंग इज अनेबल मीन्स यू आर नॉट एबल टू कंप्लाई विद योर रिक्वेस्ट, देन यू विल से अनेबल। सपोज आपको बोला गया कि रनवे के एक पोर्शन पे मेंटेनेंस चल रहा है, तो आपको बोला गया क्लियर फॉर टेक ऑफ, कंफर्म इफ यू विल यूज हाफ ऑफ द रनवे। कई बार जो एटीआर होता है 1500 मीटर, एटीआर का क्या है, टेक ऑफ रेंज डिस्टेंस वाइज, कैन समबडी टेल इफ यू नो? आई थिंक 1500 मीटर is enough for ATR. I'm not sure. Meter or feet. Or any case, I'm not sure in this case, so I can't say. Suppose ATC ने बोला कि दूसरे एंड ऑफ रनवे पे मेंटेनेंस चल रहा है, अगर आप आधे पे टेक ऑफ कर लोगे तो जाओ कर लो अपना प्लान पूरा। That time you will say unable, unable due to aircraft performance। मेरे एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है कि आधे रनवे से ही मैं टेक ऑफ कर जाऊंगा, मुझे फुल लेंथ ऑफ रनवे चाहिए। ठीक है, सो दैट टाइम यू विल यूज अनेबल, आई कैन नॉट कंप्लाई विद योर इंस्ट्रक्शन। समथिंग इज नोन एज विलको। विलको मीन्स विल कंप्लाई, यहाँ पे एक और स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे डबल एल होगा। विल कंप्लाई कि आपने जो मुझे बताया मैं उसको फॉलो करूंगा, लेकिन अभी मैं उस चीज को फॉलो करने के सिचुएशन में नहीं हूं। सपोज जब आप घर से ड्यूटी पे आते हो वापस, तो कई बार माँ पापा या घर के फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि ड्यूटी पहुंच के कॉल करना, या फिर सपोज यू आर लिविंग इन सम अदर सिटी, तो घर वाले आपके बोलते हैं कि बेंगलोर पहुंच के कॉल करना। मीन्स वो चाहते हैं कि आप वहां पहुंच के आप वहां पहुंच के रिपोर्ट करो। तो आप क्या बोलते हैं कि हाँ ठीक है करेंगे, या फिर हाँ करूंगी, जो भी है। दैट टाइम यू आर एग्रीइंग ऑन अ पॉइंट कि आई विल फॉलो दैट, बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू कैन नॉट फॉलो दैट, दैट इज गोइंग टू बी इन फ्यूचर। तो आप उसको बोलते हो विल को, कि जब मैं वहां पे उस कंडीशन में पहुंचूंगा, दैट टाइम आई विल कंप्लाई विद इट। ठीक है, बोलेगा रिपोर्ट रीचिंग 35,000 फीट, सॉरी रिपोर्ट रीचिंग 35,000 फीट, दैट टाइम यू विल से विल को, जब 35,000 फीट पे पहुंच जाऊंगा तब रिपोर्ट कर दूंगा। क्लियर? Something is word twice. Now, word twice is not a phrase. This is an action. जब आप अपनी चीज को दो बार बोलते हो, कई बार आप जब डर जाते हो या कई बार जब आप एंग्शियस हो जाते हो, तो उस टाइम आप एक ही चीज को दो बार बोलते हो। सपोज आप रास्ते पे चल रहे हो अंधेरे में, अचानक से आपको सांप दिख गया, तो डर के जो आप इधर उधर भागना शुरू करोगे, आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट हैपेंड, यू ऑटोमेटिकली रिपीटिंग योर वर्ड्स, ये सांप दिखा था वहां पे, मैंने सांप था वहां पे, लाइक दैट।
means whenever you are under panic, whenever you are anxious, or whenever you try to emphasize something, कि आप चाहते हो कि आपकी बातों को कोई सुने, अच्छे से समझे, that time you are performing an action. कौन सा एक्शन? कि आप हर एक चीज को दो दो बार बोलते हो, क्या? सो दिस इज एन एक्शन. इसका जब यूज आएगा we'll let you know. ठीक है, अभी बस इतना समझना, वर्ड ट्वाइस इज एन एक्शन. नाउ something was go ahead. Why I have said something was? ठीक है, something was go ahead. Go ahead का मतलब होता था कि ठीक है, proceed with your message. अभी go ahead को omit कर लिया गया, delete कर लिया गया. ठीक है, अभी go ahead बोलना is not as per the ICAO instructions. बट फिर भी आप अगर go ahead बोलोगे तो कोई क्राइम नहीं है, लेकिन एज पर ICAO annexers go ahead बोलना बंद कर दिया गया है. तो क्या किया गया है कि आप अपने कॉल के एंड पे अपने कॉल साइन का यूज करिए. जैसे ही आप अपने कॉल कंप्लीट करने पे लास्ट में अपना कॉल साइन बोलते हैं, दिस इज गिवन अ इंस्ट्रक्शन फॉर द अदर स्टेशंस कि नाउ माय मैसेज इज कंप्लीटेड, अब आपकी बारी. तो जब भी आप अपना कॉल कंप्लीट करते हो, देन यू कैन यूज योर कॉल साइन. ठीक है, गो अहेड बोलने की जरूरत नहीं है. सपोज आपने स्टेशन रेज किया मुंबई टावर विक्टर टैंगो लिमा किलो किलो, बदले में हो सकता है कि वहां का एटीसी बोलेगा मुंबई टावर विक्टर, सॉरी, आपने बोला मुंबई टावर विक्टर टैंगो लिमा किलो किलो. अब मुंबई टावर जब रिप्लाई करेगा तो वो बोल सकता है विक्टर टैंगो लिमा किलो किलो मुंबई टावर, गो अहेड. ठीक है, दैट इज नॉट अ क्राइम. बट वो नहीं बोलता है, वो क्या बोलता है? विक्टर टैंगो लिमा किलो किलो मुंबई टावर. लास्ट में उसने जो अपना कॉल साइन बोला ना, दैट इटसेल्फ इंडिकेटिंग कि यस, मेरा मैसेज खत्म हो गया है, अब आपकी बारी. आपने भी जब स्टेशन रीच किया तो अपना कॉल साइन ही बोला. ठीक है, सो वेन एवर यू आर कंप्लीटिंग योर कॉल, कंप्लीट विद द कॉल साइन. दिस विल गिव अ इंडिकेशन कि यू हैव कंप्लीटेड योर कॉल. नाउ अब आपकी बारी. ठीक है, तो हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे. ये प्रैक्टिस करने की चीज है, हम लोग उसको समझेंगे बाद में. गो अहेड भी बोला जाता है डे टू डे, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप गो अहेड बोले देन दैट इज अ नेगेटिव मार्क अप टू यू, बट विल ट्राई टू अवॉइड एज मच एज वी कैन. ठीक है, अगर कोई चीज रूल में नहीं है तो उसको ना बोलना ज्यादा बेहतर है. अब आप बोलोगे आपको कैसे पता कि रूल में नहीं है? रूल बुक ये रहा ना अपने पास, एक और लोकेशन क्या कहते हैं इसको, एक और डॉक्यूमेंट 9432, इसमें लिखा है गो अहेड मना कर दिया गया है. सी, ठीक है, तो गो अहेड बोलना बंद कर दिया गया है, बट बोलो कोई दिक्कत नहीं, दैट इज नॉट अ क्राइम. अब आते हैं वापस तो जो मैंने छोड़ा था, ब्रेक एंड ब्रेक ब्रेक. सपोज मैंने एक लंबा चौड़ा कॉल कर दिया एंड वहां पे आधा आपने सुना आधा आपने नहीं सुना, तो आप बोलोगे कि देयर इज अ ब्रेक आफ्टर अ ट्रांसमिशन, कि आपके मैसेज में किसी खास पोर्शन के बाद ब्रेक था. मींस I have not understood it or I have not received it clearly. There is a break. वहां पे ब्रेक था, उसके बाद हमने नहीं सुना उस चीज को. So in a single call, if there is a break, so you can repeat it like कि runway visual range 500 meters, winds 20 knots, break after winds. मीन्स जब से आपने विंड्स वाला पैरामीटर मेंशन किया उसके बाद एक ब्रेक था आपके कॉल में. ठीक है, से अगेन, फिर से बताइए, जहां पे आपका कॉल ब्रेक हुआ उसके बाद आप फिर से बोलिए. सो दैट इज अ यूज ऑफ ब्रेक. इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, बट फिर भी आपको समझने के लिए रेडी रहना चाहिए कि जहां पे आपने मेंशन किया ब्रेक, उसके बाद आप चाहते हो कि दोबारा से कोई बोले. नाउ समथिंग इज ब्रेक ब्रेक, ये इंपॉर्टेंट है, बट
ये पायलट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एटीसी कंट्रोलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सपोज एक बार में एटीसी को 4-5 एयरक्राफ्ट हैंडल करना पड़ा। एक एयरक्राफ्ट का नाम है विक्टर इंडिया विक्टर, दूसरे एयरक्राफ्ट का नाम है लिमा किलो किलो, ठीक है, तीसरे एयरक्राफ्ट का नाम है इंडिया जुलू नवंबर। नाउ विक्टर इंडिया विक्टर को क्या चाहिए था, इसको चाहिए टेक ऑफ क्लियरेंस, ठीक है। लिमा किलो किलो को चाहिए इंजन ग्राउंड रन का अप्रूवल, ठीक है। इंडिया जुलू नवंबर को चाहिए टैक्सी वे का क्लियरेंस, टैक्सी करना है इसको, ठीक है। एक टाइम पे इतने सारे एयरक्राफ्ट को हैंडल करना पड़ता है एटीसी को, कई बार सॉरी एटीसी को एक साथ इतने सारे एयरक्राफ्ट हैंडल करने पड़ते हैं। दैट टाइम दे विल यूज द फ्रेज ब्रेक ब्रेक। हाउ, ध्यान से देखना, ब्रेक ब्रेक बोलने के बाद वो किसी भी एयरक्राफ्ट का कॉल साइन बोलेगा। तो जैसे ही ब्रेक ब्रेक बोला, एक डिवाइडर, और डिवाइडर के उस पार फिर वो कॉल साइन बोलेगा, यानी वो मैसेज उस एयरक्राफ्ट के लिए, फिर बोलेगा ब्रेक ब्रेक, फिर कॉल साइन यूज करेगा, फिर जो मैसेज देगा वो थर्ड एयरक्राफ्ट के लिए। कैसे, जस्ट हैव अ लुक आउट। नाउ माय एटीसी इज बैंगलोर टावर। ध्यान से समझना, अगर नहीं भी समझ में आया 100%, दैट इज नॉट गोइंग टू बी बिग प्रॉब्लम, बट आई विल ट्राई कि आपको समझ में आ जाए। If I am Bangalore Tower, I need to handle these 3 aircraft for 3 different purposes. How I will handle? I will say Victor Tango Victor India Victor Bangalore Tower clear for takeoff. Break break Lima Kilo Kilo engine ground run approved. Break break India Zulu November taxi via taxiway Alpha Charlie and Delta. ध्यान दिया आपने, थोड़ा धीरे बोलो। Victor India Victor, sorry, Victor Tango Victor India Victor Bangalore Tower cleared for takeoff. Break break Lima Kilo Kilo engine ground run approved. Report after completion. Break break India Zulu November clear for taxi via taxiway Alpha Charlie Delta. ठीक है, समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, so when we need to handle multiple aircraft, we will use break break. That break break will act like a divider. break break आपका कॉल खत्म, अब दूसरे की बारी। दूसरा कौन सा एयरक्राफ्ट जिसका कॉल साइन बोलूंगा, लिमा किलो किलो इंजन ग्राउंड एंड अप्रूव्ड रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन। ब्रेक ब्रेक आपका कॉल खत्म, इंडिया जूल नवंबर तुम्हारा टर्न आया, टैक्सी वे क्लियरेंस, ठीक है, सॉरी क्लियर फॉर टैक्सी, टैक्सी वाया टैक्सी वे अल्फा ब्रावो चार्ली। नाउ ये आपकी बारी, लाइक दैट। So he will handle multiple aircraft by using the term break break. अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेक और ब्रेक ब्रेक का ज्यादा यूज नहीं है, बट जहां पे आएगा आपको ये समझ में आ जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। सो दिस वाज सम ऑफ द एरोनॉटिकल फ्रेजेस दैट वी नीड टू कैरी ऑलवेज, कि अवॉइड करेंगे लेंदी सेंटेंस को बोलने के बदले हम एक छोटा सा सेंटेंस बोल देंगे, ठीक है, so that my call can become accurate and also that will avoid any kind of confusion, ठीक है। Instead of saying wait I will call you back, simply I can say stand by, ठीक है। Instead of saying I cannot comply with your instruction, simply I will say unable, ठीक है। Instead of saying what is the readability of my transmission, I will simply say how do you read, ठीक है। तो इतने लेंदी सेंटेंस बोलने के बदले छोटा सा सेंटेंस, सो दैट इज एरोनॉटिकल फ्रेजेज। देयर आर 22 फ्रेजेस, 22 फ्रेजेस हैं इसके हिसाब से, काउंटिंग के हिसाब से, ठीक है, 22 फ्रेजेस ऑलमोस्ट। वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, सबका मीनिंग समझ में आना चाहिए। आई होप आई वाज एबल टू मेक इट क्लियर अप टू यू। एक बार में या फिर आज सिर्फ पढ़ने के मात्र से अगर आपको याद नहीं रह पाया, नॉट अ बिग डील, कोई बात नहीं। धीरे धीरे जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब आपको याद हो जाएगा। मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि आज मैंने पढ़ाया तो आज याद होना चाहिए, नहीं, धीरे धीरे उसको रिपीट करेंगे। चीजें लोग भूलते हैं, आज जो पढ़ा कल भूल सकते हैं,
कल जो पढ़ा परसों भूल सकते हैं, 2-3 दिन पास्ट में जो पढ़ा उसको सडनली कोई रिकॉल नहीं कर पाएगा, दैट इज ह्यूमन नेचर, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। बट बाय द प्रैक्टिस वी विल मेक श्योर कि हर चीज डेली बेसिस पे हमको याद रहे, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम परफेक्टली, बट 60%, 70% if we will be able to carry further, that is beneficial to us always. Am I clear for this? Okay. ठीक है, then I think let me close this topic here only. आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं. We'll see you tomorrow 9 o'clock same time, and then we will open very important topic tomorrow. That is going to be chart reading techniques. Now, wait for a minute. I need to share something. Okay. Tomorrow we are going to see chart reading techniques. We will understand how this chart is being written. इतना सारा कंफ्यूजन बना हुआ है, इतने सारे तार इधर से उधर गए हुए हैं, इतने सारा नाम लिखा हुआ है और पता नहीं किस किस कोड डिकोड में लिखा हुआ है. तो कल हम देखेंगे कि इस चार्ट को पढ़ा कैसे जाता है, इस चार्ट को समझा कैसे जाता है. एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास इज गोइंग टू बी टुमारो. वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई आई एम सेइंग वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि आपके हर एक क्वेश्चन का लिंक चार्ट से जुड़ा हुआ रहता है. तो अगर आपको चार्ट पढ़ने में कहीं भी कंफ्यूजन रहेगा, यू आर गोइंग टू मेक मिस्टेक अगेन एंड अगेन इन योर कॉल. ठीक है. सो टुमारो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. कल हम लोग पढ़ेंगे चार्ट रीडिंग टेक्निक्स. एक चार्ट को पढ़ लेंगे, सिमिलर मेथड पे सारे चार्ट्स कवर होते हैं. ठीक है. सो आई विल सजेस्ट कि take a print out of this chart. This chart is already been available through the drive link. drive link में आपको ये चार्ट दिया हुआ है. वहां पे 2 चार्ट्स आपको दिए हुए रहेंगे. ठीक है. इस दोनों चार्ट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है. आप दोनों चार्ट का प्रिंट आउट ले लो. एंड आई विल सजेस्ट कि टेक अ प्रिंट आउट ऑफ कलर कॉपी. ठीक है. कलर प्रिंट आउट लेना. एग्जाम में आपको सेम चार्ट मिलते हैं कलर्ड में. ठीक है. तो अभी से ही ऐसा प्रैक्टिस कर लो कि एग्जाम में आपको कंफ्यूजन नहीं हो. ब्लैक एंड व्हाइट लोगे, कंफ्यूजन हो सकता है. देयर आर मेनी थिंग्स. सो कलर प्रिंट आउट लेना और हार्ड कॉपी रखना. अब आप बोलोगे कि सर हार्ड कॉपी तो लोग अवॉइड करते हैं, मोबाइल पे इनफ रहता है. नो, मोबाइल के स्क्रीन पे आपको एक बार में पूरा का पूरा चार्ट विजिबल नहीं होता है. उसका सबसे बड़ा लॉस ये है कि आप एक क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव वे में समझ नहीं पाओगे. ठीक है. सी, अभी मैं कंप्यूटर का स्क्रीन आपके सामने दिखा रहा हूं ना. दिस स्क्रीन इज लार्ज इनफ. लुक एट दिस. आधा चार्ट विजिबल हो रहा है, आधे से नीचे इतना सारा कटा हुआ था. सो अगर आप मोबाइल पे देखोगे, किसी भी स्क्रीन पे देखोगे, आप एक बार में पूरा का पूरा चार्ट विजुअलाइज नहीं कर पाओगे. सो बेटर टू टेक इट ऑन हार्ड कॉपी. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलरिटी हो जाएगा, प्लस प्रैक्टिस करने में भी इजी रहेगा. सो टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस 2 थिंग्स ऑलरेडी बीइंग शेयर्ड थ्रू ड्राइव लिंक. ड्राइव लिंक में जाना, जो मेन सेशन वाला स्लाइड है वहां पे ये दोनों चार्ट अवेलेबल है. दोनों का हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लीजिए, एंड दैट टू इन कलर्ड कॉपी. ठीक है. टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू सी how to read the charts, and then further we will use these charts in our classes, and that is going to be used extensively. बहुत ज्यादा यूज होगा इसका. ठीक है. That's why I am suggesting to take a hard copy. Okay. Is that good for today? Shall I close this meeting now? Okay, sir. हाँ सर. So ऐसे ही धीरे धीरे करके हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे. No need to take much load at a time कि एक ही बार में सब कुछ पढ़ लेंगे, वो भी काम नहीं करेगा. ठीक है. और ना ही ये सोचना है कि काफी धीरे पढ़ रहे. नो, वी आर गोइंग गुड. ठीक है. वी हैड कंप्लीटेड टिल लेक्चर 6, but one topic is left from there. We are going good. We'll cover it up as per our regular pace. और एक चीज मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पहले ही कर देता हूँ. अभी हम लोग सारे बेसिक टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे टाइम लेके
अच्छे से पढ़ रहे हैं। When we are going to make our home, the foundations take much time. Always. जब भी आप देखो कि किसी का घर बनता है ना, तो जो फाउंडेशन रहता है बहुत ज्यादा टाइम लेता है। मिट्टी खोद के नीचे उसका पिलर बनता है, वो उसको पहले सोक होने देते हैं अच्छे से, दैट शुड गेट ड्राई अप। और जब एक बार फाउंडेशन क्लियर हो जाता है तो विद इन अ मंथ सेकंड थर्ड फ्लोर तक कोई बना देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना फास्ट बनता है। सो व्हेन वी आर मेकिंग आवर फाउंडेशन, टेक एम्पल टाइम, ठीक है, कंज्यूम एज मच एज यू कैन, कंज्यूम द टाइम एज मच एज यू कैन, धीरे धीरे आराम से, क्योंकि ये सारे टॉपिक फिर से रिपीट नहीं होंगे। आज के बाद मैं आपको एक और लोकेशन डेजिग्नेटर कैसे पढ़ते हैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं बताऊंगा, बट जितना टाइम लेके मैंने अभी आपको बताया उतना टाइम लेके बाद में नहीं बता पाऊंगा, बाद में शॉर्टकट से आपको समझाना शुरू करूंगा, ठीक है। या आप भी इस टॉपिक को इतना इंटरेस्टिंगली नहीं पढ़ोगे, आप सोचोगे सिर्फ मेन चीज बता दो ना, जितना भूल रहा हूं, शुरू से राम कथा क्यों बता रहे हो, लाइक दैट। सो गिव एम्पल टाइम टू दीज टॉपिक्स, फाउंडेशन बनने तक अच्छे से पढ़िए, ज्यादा टाइम दीजिए इस सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। वंस वी कवर द पोजीशन रिपोर्ट, ठीक है, ट्रस्ट मी, वंस वी जंप टू द लेक्चर 10, तो जितना टाइम आपको लेक्चर 1 से लेक्चर 10 जाने में लगा, उसका हाफ टाइम आपको लेक्चर 10 से 20 जाने में लगेगा, ठीक है। वेट फॉर इट, वो टाइम आएगा, तुरंत टॉपिक खत्म होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, कुछ बचता ही नहीं है पढ़ने को। उसके बाद सिर्फ एग्जाम्पल्स और उसके आंसर्स, एग्जाम्पल्स और उसके आंसर्स। तो जब तक हम लेक्चर 10 तक नहीं जा रहे हैं, पोजीशन रिपोर्ट तक, सारे टॉपिक को अच्छे से समझिए और टाइम देके उसको पढ़िए, रिवाइज करिए। वंस वी गो टू द पोजीशन रिपोर्ट, उसके बाद हम लोग फास्ट ट्रैक पे आ जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद मुश्किल से 1 वीक का सिलेबस बचता है। उसके बाद आपको सिर्फ बचेगा क्वेश्चन का टाइप, उसका आंसर टाइप, क्वेश्चन टाइप, आंसर टाइप। ना कुछ पढ़ने जैसा होता है, ना कुछ बताने जैसा होता है। आधा से ज्यादा आंसर आप खुद करना शुरू कर दोगे। मैं सिर्फ क्वेश्चन का टाइप चेंज करूंगा, आंसर आपके पास रेडी रहेगा, ठीक है। तो वैसा भी टाइम आता है, और मैं तो पिछले 1.5 साल 2 साल से देख ही रहा हूं, ठीक है। तो जैसे ही पोजीशन रिपोर्ट तक हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद आपका क्लास फास्ट ट्रैक मोड पे आ जाएगा। तो इससे पहले के जितने भी टॉपिक है, अच्छे से इसको समझिए। अगर आप इन सारी चीजों को अच्छे से समझ लोगे, बाद में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। सो आई एम क्लोजिंग दिस मीटिंग here only for today, and I'll see you tomorrow. Tomorrow you all are available, right? Because that is going to be important topic. Yes, sir. India Zulu Yes, November, Madhav, tomorrow available? Yes, I am available tomorrow because tomorrow is my morning shift. ठीक है, मेरा आफ्टरनून है, लेकिन एंडिंग में मैं जल्दी करने बोलूंगी उसके मैंने लिए। चेंज whatever feasible up to you, you can plan accordingly. Because I have told कि we have enough time, तो ऐसा नहीं है कि जान दे देना है टॉपिक के पीछे लड़ झगड़ के, नहीं। टाइम मिले आराम से आइए, बाद में भी रहेगा, डे आफ्टर टुमारो ऑल्सो वी कैन कवर इट अप, बट टुमारो आई विल मेक श्योर कि सब लोग अवेलेबल रहें। नहीं रह पाएंगे तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि लड़ झगड़ के शिफ्ट इंचार्ज से किसी भी तरह से छुट्टी ले लेनी है। हो पाता है टाइम, वेल एंड गुड, नहीं हो पाता विल कवर इट अप, ऑल्दो द सेशन विल बी रिकॉर्डेड, सो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। होगी तो हम लोग अगले दिन देख लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। डन। सो आई एम completing this meeting here only. Copy. Good night for today. Bye bye. Have a good night. गुड नाइट।